3. Correct. One Good. month. Good. 3. 1 word, 2 word, and 3. 1 word, 3 word. Correct. Correct. So, okay, when we should go with one word, can anyone explain it? Okay, correct. Like, say for example, Increment, decrement. yes, correct. Good, very good. And when we are talking about one word or one byte instructions, how the format will be? Format कैसे रहेगा? Operation code, operate, okay. Okay, so basically, operation code will be there and operand will be there. Along with that, a description will be there, right? So, say for example, we have increment. We want to increment or we want to add the content of register B to the content of account. That's the description. Then what will goes into operation code? Add. Okay, correct, correct. And what in our operand? B. In B. Yes, correct. So that's about our one word or one byte instruction. Then we are when we are talking about two words or two byte instructions, how the things will be? Operand 1 or operand 2. Or add or two numbers. Correct. So very first operation code, then operand 1, operand 2. If we want to add the content of register B to the content of register C, then what will comes under our operation code? Add. Correct. Good. And then in our operand 1 and 2? Correct. Very good. Lovely. So that's about our 2 byte instruction or 2 word instructions, and 3 words or 3 byte instructions. Jump pile. Okay. Say for example, we want to jump from one instruction to another, fine, or from one memory location to another. So operation code will be there and instruction address will be there. So very first the operation code, that is say jump आपने अभी बोला, then next क्या आएगा हमारा? एड्रेस आएगा, राइट, करेक्ट, एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका, तो कैसे रहेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या बना? ऑपकोड प्लस डेटा बाइट 1 प्लस डेटा बाइट 2, फाइन। So that way our structure will be when we are talking about our 3 word or 3 byte instructions. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Then after that we discussed about macro operation and micro operation. So when it comes to micro operation, which are the different micro operations do we have? Arithmetic. Arithmetic, yes, that is increment. Say we are incrementing the counter, or else we are performing any logical operations or arithmetic, as you said. Then other than that, Setting a flip flop. yes, setting a flip flop, correct, good, very good. And Reading from memory. reading from memory, yes. If we can read from memory, then Writing. correct. Then we can write as well. Yes, Deleting. correct, good, good. Then Complement. complement, yes, complement the register content, that is 0 1 we saw earlier. Then Resetting register. correct, very good. We can reset the register. Transfer data register to external. Yes, correct, very good. Transferring data from register to external, at the same time external to. Yes, correct, very good. Correct, good, Radha, Roshni, Krupa, Nimisha, very good, everyone. So very good in a way. That's all about our micro operations. Now, when we are talking about this micro operation cycle or sample control points, so which are the different sample control points?
We saw a diagram. If you remember, we saw one diagram. Yes, ma'am. Yes. So let me show you once side by side, so you may get some idea, I guess. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, fine, perfect. So this is our sample control points. Now, in sample control points, the very first instruction is about our MAR and PC. So what this instruction does means, what this will work or how the way it will work. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सिग्नल एक्टिवेट करेगा Correct, जैसे good. पीसी और एमएआर में डेटा ट्रांसफर हो और उसके बाद पीसी डेटा ट्रांसफर करेगा एमएआर में. Correct, very good. Okay, MAR stands for मेमोरी एड्रेस. good. And PC? प्रोग्राम Good. Okay, IR? इंस्ट्रक्शन Okay, MBR? AC? Very good, lovely, good. So next instruction, PC to PC plus 1. So this particular instruction, what will this instruction do for us? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए +1 दे सकते. करेक्ट. हमारे जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कैसे मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर में करंट का होगा, उसमें +1 करेंगे तो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कहाँ पे मूव होना है वो मिल जाएगा. देन IR एंड MAR, what will that do for us? IR, MAR to IR, suppose, right? MAR to IR. Yes. MAR से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से हम IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करेंगे. क्यों ऐसा क्यों करेंगे? इससे क्या होगा? कंटेंट ऑफ MAR is transferred to IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो इससे क्या होगा? MAR में क्या होगा? नेक्स्ट एड्रेस का पता चला. हाँ एग्जैक्टली. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये MAR to IR जाएगा हमारा कंटेंट. फाइन. नेक्स्ट इज MBR, सॉरी AC to MBR. This one, AC to MBR. And what will this instruction do for us? मैम जो परफॉर्म हुआ है टास्क या एरिथमेटिक या तो उसका होगा इसे. हाँ, उसका जो भी रिजल्ट है वगैरह. फाइन. हाँ, तो वो जो सारी चीजें टेक केयर करनी है वो यहाँ पे होगी. फाइन. So in a way, this is about our sample control points and micro and macro operations. After that, we are having a bus concept. So bus concept we discuss. So what do you mean by bus? Yes. कम्युनिकेशन कराता है. Yes. Used to transfer data. Yes, it's a special unit, correct, which is used to transfer data. Communication करेगा, वो communication establish करने के लिए हमें ज़रूरत है. So in a way, when we want to move our data from one particular device to another device, then in that circumstances we want our buses. Fine. अभी ये buses और कैसे work करते हैं? बस में होता क्या है? How the way it will work? Can you brief a little about this buses? Buzzing is nothing but a collection of physical connections. Okay, nothing but the collection of physical connections. Yes, that is there. Other than that, बसेस किससे बनेंगे? बसेस में डेटा क्या, डेटा पास होगा, राइट? तो वो कौन सा डेटा हमारा पास होगा? बिट्स एंड बाइट्स में डेटा पास होगा हमारा. Yes. In bits and bytes, our data will be transferred between the parts of the computers from one part to another part. Fine. यहाँ पे कैसे रहेगा कि जो आपने बोला कि फिजिकल कनेक्शंस जो है उसका कलेक्शन है ये,
तो वो हमारे केबल हो गए, हमारे वायर्स हो गए, उन सबको हम क्या बोलेंगे कि वो दोस आर नथिंग बट द, हाँ बिल्कुल, फिजिकल बसेस ओनली, जो कि हमें डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, ठीक है, विच इज दैट। दूसरा यहाँ पे कैसे रहेगा कि यहाँ पे हम मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उसके साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट, जैसे हमने कैसे बात किया था शायद से लास्ट क्लास में, कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे सीपीयू और सपोज सीपीयू तो नहीं, सपोज हम बात करते हैं कंट्रोल बस एंड मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, कंट्रोल यूनिट एंड डेटा सॉरी मेन मेमोरी के बीच में, तो क्या उसके लिए और मेन मेमोरी एंड हमारा जो एएलयू है उसके लिए, दोनों के लिए क्या अलग अलग यहाँ पे बसेस होंगे हमारे पास? नो मैम, नो, कंबाइन टुगेदर वी विल हैव सिंगल वन। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हैं किसके अंदर, सीपीयू के अंदर है, तो हम डायरेक्टली उसके साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट, ओके। तो दैट इज दैट। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम बस की बात करेंगे यहाँ पे, तो बस क्या कैरी करेगा, बस में होगा क्या, हमारा डेटा होगा। डेटा कौन से फॉर्मेट में होगा? ऑफ कोर्स इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, फाइन, हाँ, बिट्स एंड बाइट्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स वो बिट्स एंड बाइट्स हमारे ट्रैवल करेंगे वाया दैट पर्टिकुलर केबल, फाइन। तो अभी वो जो सिग्नल का डायरेक्शन होगा वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल और इट कैन बी बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होगा कि ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एक ही डायरेक्शन में हमेशा डेटा हमारा ट्रैवल करेगा। whereas when we are talking about our bidirectional मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हमारा डेटा सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर पाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें कि मेन मेमोरी के बारे में, तो मेन मेमोरी टू सीपीयू एंड सीपीयू टू मेन मेमोरी, ठीक है, तो ये दोनों तरीके से वहां पे डेटा का ट्रैवलिंग होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे ये कीबोर्ड के अंदर, तो कीबोर्ड में क्या होगा, सिर्फ कीबोर्ड टू सिस्टम जाएगा डेटा। क्या हमें कीबोर्ड के ऊपर कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ रिटर्न में कुछ आता है? नहीं आता है, ठीक है, हाँ, सेम वे। तो हमारे मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर जो है वो हमसे क्या कोई इनपुट लेता है? नहीं, वो सिर्फ हमें आउटपुट देता है, ठीक है, वो वन डायरेक्शन में इन अ वे डेटा ट्रैवल करता है। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन बसेस एज वेल, कि यहाँ पे आपका हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो लाइक यूनिडायरेक्शन हो सकता है एंड बाई डायरेक्शनल हो सकता है। अगेन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बस यहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे। सपोज हमारे बस का साइज है 32 बिट का, तो वो 32 बिट डेटा उसमें ट्रांसफर हो पाएगा। अगर 64 बिट का है तो 64 बिट डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा। हमारा ये जो डेटा है इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी और के ऊपर इसका हम स्पीड डिसाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा कि कितनी बार, मतलब सेंडर टू रिसीवर सपोज होके वापस आ गया तो कितनी बार जाके वो वापस आ रहा है इन अ सेकंड, कितनी बार ये हो सकता है। मतलब सपोज हमें आपको घर से कॉलेज तक जाना है, तो आप घर से कॉलेज तक इन एन आवर, एक घंटे में कितनी बार जाके वापस आ सकते हो। दैट इज व्हाट इज आवर फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। बस का फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि इस बस का फ्रीक्वेंसी अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत बार, मतलब एक ही बस जो है वो सेम रूट पे बहुत सी बार वो घूम लेती है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग कि वो यहाँ पे हमारे बस, ये वाले बस में भी रहेगा। आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा कि बस कौन सी फास्ट होगी, तो डेफिनेटली जहाँ पे हम ज्यादा डेटा कैरी कर पाएंगे। ज्यादा डेटा कहाँ पे कैरी कर पाएंगे? तो जहाँ पे जिस बस का साइज बड़ा होगा, that is there in first place, fine, this is the thing to debate on this. We can do that thing, और at the same time क्या रहेगा, ज्यादा डेटा कैरी करेगी तो ज्यादा टाइम लगाएगी, और अगर कम डेटा कैरी करेगी कम टाइम लगाएगी। पर एट द सेम टाइम अगर हम बोले कि कम डेटा वाला जो बस है हमारा, राइट, तो वहां पे एट वन गो, एक बार जाने में ही कितना डेटा, सिर्फ 32 पास हो पाएगा। लेकिन अगर सपोज हम 64 के ऊपर हमारा डेटा शेयर कर रहे हैं, तो एक ही साथ में हमारा 64 बिट डेटा जा रहा है। सपोज 32 बिट वाले को वर्क करने के लिए चाहिए है 10 मिनट्स, 64 वाले को वर्क करने के लिए चाहिए है सपोज 15 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम 32 दो बारी घुमाएंगे तो कितने मिनट्स लगेंगे हमें? 20। हाँ, लेकिन वो सेम टास्क हम हमारे 64 बिट से कितने में कर सकते हैं? 15 में, 15 में, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा कि 5 मिनट्स हमारे यहाँ पे सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट थिंग इज दैट, तो ये चीज एक हमें ध्यान में रखनी है कि उसके अकॉर्डिंगली ये रहेगा हमारा जो फास्ट है, स्लो है वगैरह, कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका साइकिल का जो टाइमिंग है वो कितना रहेगा, कितनी बार वो इन अ सेकंड डेटा रिसीव करके सेंड करता है, वो सारी चीजें। ओके,
After that, when it comes to the types of computer buses, then there are basically three types of computer buses we have. Very first one is our control bus, secondly our data bus, and third is our address bus. Address. Fine, which we can see over here. This is our first data bus, this one black one is our control bus, and this is our address bus. Fine, this is the address bus. नाउ यू टेल मी कि जब भी हम ये बसेस के बारे में बात करेंगे, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस, हर एक का जरूरत क्या है, किसका क्या जरूरत है, कब हमें किसका जरूरत पड़ सकता है, या फिर व्हाई डू वी नीड दिस बसेस, डिफरेंट टाइप्स के बसेस का जरूरत क्यों है? मैम, डेटा कैसे ले जाना है वो कंट्रोल बस हैंडल करेगा, और डेटा का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस हैंडल करेगा, और जो रियल डेटा है वो डेटा बस हैंडल करेगा। ओके फाइन। कंट्रोल बस में हम डेटा रिसीव और सेंड दोनों कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली करेक्ट, गुड, वो बाय डायरेक्शनल होगा इनमें, जो आपने बताया करेक्ट है, दैट इज आर बाय डायरेक्शनल। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल बस की जब भी बात करते हैं ना, तो कंट्रोल बस किस लिए यूज होता है, देन वो किससे, एक तो सीपीयू हमारा यूज करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन डायरेक्टली यूज कर रहा है उसे, हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली यूज करेगा। ये जो हमारा है यहाँ पे कंट्रोल बस, कंट्रोल बस के लिए सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये एरो कहाँ से है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर से, राइट। अभी सेम टाइम पे आप देखो कहीं पे भी माइक्रो प्रोसेसर पे रिटर्न में हमें एरो आया है? नहीं आया है, राइट। तो दैट्स द वन थिंग टू कीप इन योर माइंड। दूसरा रहेगा यहाँ पे कि ये करेगा क्या बेसिकली हमारे लिए, कि ये मॉनिटर करेगा कि जो भी एक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स को दिए गए हैं, क्या वो परफॉर्म हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो किस वजह से नहीं हुए हैं। ठीक है, इन वे उसे क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग करना, क्या करना है मॉनिटरिंग, कि एक्टिव पार्ट्स, एक्टिवली कितने कितने लोग हमारे सिस्टम में फंक्शन कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि कितनी चीजें हमारी ऑक्यूपाइड है इन अ वे। ठीक है, तो वो हमारा ध्यान रखेगा कंट्रोल बस। हम देखते हैं यहाँ पे रैम है, रोम है, ये वीडीयू, देन ये कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे हैं हमारी, इन सभी के अंदर आप देखोगे कि हमें ये तो चेक करना पड़ेगा कि प्रिंटर को सपोज हमने प्रिंटिंग के लिए कुछ टास्क दिया गया था, तो क्या वो प्रिंटिंग का टास्क खत्म हो गया है या नहीं हुआ है, क्या हमें वो चेक करना पड़ता है? हाँ, तो वो हम चेक कर सकते हैं विद दिस। देन अगर हम वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो के अंदर भी सेम वे रहेगा कि अगर हमारा जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, क्या डिस्प्ले प्रॉपर्ली हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं, ये हमारी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से इनपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारा कंट्रोल बस जो है वो यहाँ पे टेक केयर करेगा। ठीक है, जहाँ पे उसे ऑपरेशंस को लगेगा नेसेसिटी कि उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है हमारे सिस्टम में, तो वो सारा टास्क हमारा कंट्रोल बस करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज आवर डेटा बस, जो कि अभी आपने शायद से एक्सप्लेन किया। डेटा बस जो है उसमें कैसे रहेगा कि हमारा डेटा आएगा भी और जाएगा भी, दोनों थिंग्स यहाँ पे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसे रहेगा, हम डेटा यूजर के पास से भी लेंगे कुछ। ठीक है, हमें इनपुट मिला तो उसी इनपुट का कुछ हमें आउटपुट देना है। ठीक है, या फिर सपोज हम मान ले कि हमें कुछ सपोज आपको आउटपुट मिला था, उसका आपको इनपुट देना है। नहीं, इनपुट तो नहीं हो सकता है, नहीं कोई, हाँ, आपको कोई आउटपुट, सपोज एक एक का आउटपुट, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन सकता है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारा डेटा बस जो है वो टेक केयर करेगा। सो इन अ वे ये किस लिए यूज होता है, इट यूज टू हैंडल द ट्रांसफर ऑफ ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे ये जितने भी पार्ट्स हैं, डिस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड, वीडियो, रोम, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, उन सबके बीच में डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इन दोनों चीजों को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करेंगे ये डेटा बस। डेटा बस इज अगेन, जैसे हमें देख के ही पता चल गया है कि इट्स अ बाई डायरेक्शनल वन, एंड समटाइम्स इट आल्सो कॉल्ड एज आवर मेमोरी बस। डेटा बस को हम मेमोरी बस भी बोल सकते हैं, ये हमें 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि डेटा बस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैंक, देन दैट विल बी आवर मेमोरी बस। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल डेटा बसेस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लाइक
एक ही डायरेक्शन में जो है वो हमारा एट अ टाइम डेटा ट्रांसमिट करेंगे। ये हम शायद से हम जानते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। पता है आपने शायद से हाफ डुप्लेक्स मोड आपको पता होगा, जो हमारे कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं ना उसमें हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। कि सपोज वॉकी टॉकी की हम बात करें, ठीक है, वॉकी टॉकी में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कि हम सेंडर जो है वो भी डेटा वो भी कुछ बोल सकता है और अपना मैसेज दे सकता है, रिसीवर भी मैसेज दे सकता है, बट एट द सेम टाइम एट सपोज मान लेते हैं 10 बजे शार्प 10 o'clock पे दोनों को बात करना है, तो दोनों एक साथ में नहीं कर पाएंगे। सेंडर कैन सेंड डेटा टू रिसीवर, रिसीवर कैन सेंड डेटा टू सेंडर, वो दोनों चीजें हो सकती हैं। ए बी को भेज सकता है, बी ए को भेज सकता है, पर दोनों के दोनों एट अ मोमेंट एक साथ में एक दूसरे को नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वे डेटा बस जो है उसमें भी सेम वे रहेगा, भले ही वो बाय डायरेक्शनल है हमारा, पर फिर भी यहाँ पे जब हमें डेटा एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा जो हमारा डायरेक्शन है वो यहाँ पे फ्री होना चाहिए, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर हियर इन आवर डेटा बस। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Yes, ma'am. ओके फाइन। अभी बेसिकली सीपीयू के अंदर हमारा डेटा बस क्या काम करेगा विद सीपीयू, मतलब कि हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके साथ में डेटा बस क्या काम करेगा? बेसिक काम क्या होगा? सीपीयू को देना क्या होता है? सीपीयू क्या हमेशा देता रहता है? इंस्ट्रक्शंस देगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। Instruction. हाँ बिल्कुल करेक्ट, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम करेगा। डेटा बस जो है वो और हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, इंस्ट्रक्शन किसकी मदद से हम शेयर करेंगे? इंस्ट्रक्शन भी है क्या एट द एंड ऑफ द डे? इट्स अ डेटा ओनली, फाइन। तो इंस्ट्रक्शन को शेयर करने के लिए हम अगेन यूज करेंगे हमारे डेटा बस का, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, वो अपने इंस्ट्रक्शन को शेयर करने के लिए यूज करेगा हमारे डेटा बस का। Next is about our address bus. When we are talking about address bus, तो उसमें क्या आएगा? Address of data. Okay, address of मेमोरी data. में डेटा कहाँ स्टोर हुआ है वो एड्रेस बस बताएगा। Okay, तो बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे कि हमें सपोज डेटा पढ़ना है कुछ, वी वांट टू फैच सम डॉक्यूमेंट एंड वी वांट टू रीड सम डॉक्यूमेंट्स, रीड सम डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा हमें? यहाँ पे एड्रेस का, कौन सी मेमोरी से आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे हमें एड्रेस बस का जरूरत रहेगा। दूसरा, अगर हम मान लेते हैं कि हमें कुछ लिखना है, तो मतलब कि राइट करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेमोरी फ्री है, कहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, तो उसके लिए भी हमें अगेन क्या चाहिए होगा? मेमोरी के एड्रेस का, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ये हैंडल करता है हमारा एड्रेस बस। अगेन एड्रेस बस जो है वो हमारे लोकेशंस के बारे में, रजिस्टर्स की लोकेशंस के बारे में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसके बारे में, हमारे कैरेक्टर्स ले ले, वर्ड ले ले, सेंटेंसेस ले ले, लेबल, सिंबल्स, कोई भी चीज आप ले लो, वो सारी चीजों को कहाँ पे सेव किया है उसके एड्रेसेस को शो करने का काम करता है हमारा एड्रेस बस। कि अगर हमने कोई सिंबल है, इमेज है, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, कुछ भी है इन डेटा में, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, कहाँ पे सेव्ड है, वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ आवर एड्रेस बस। अगेन एड्रेस बस जो है वो भी हमारा यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा, क्योंकि एड्रेस जो है वो हम प्रोवाइड, सिस्टम जो है माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू है वो हमें प्रोवाइड करेगा। कभी हमने देखा कि हमने बोला कि मुझे 2000 मेमोरी लोकेशन पे ये डेटा को सेव करवा दो, चलो मुझे ये फाइल है मेरा, वो 2000 मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है। कभी भी सेव करने के टाइम पे क्या हमें पूछता है कि मेमोरी लोकेशन आप दो, चलो स्पेसिफाई करो? नो, इट्स नॉट दैट, फाइन। वो सिस्टम इंटरनली अपने आप मैनेज करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सा होगा? हमारा यूनिडायरेक्शनल होगा, आर एड्रेस बस। आर वी क्लियर विद दिस? Next is about our instruction execution. When we are talking about our instruction execution, तो instruction execution के अंदर पहले तो ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया ना वो सारी चीजें तो रहेगी ही रहेगी। मतलब कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो है उसके एग्जीक्यूशन में हमें ये बसेस का जरूरत रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मिलेगी कहाँ से? माइक्रो प्रोसेसर से, पर आएगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ बस, फाइन। कौन सी बस से आएगा? डेटा बस से, वो डेटा के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब वो डेटा कहाँ पड़ा है वो फाइंड आउट करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? एड्रेस बस का जरूरत पड़ेगा। और उस डेटा जो है उसका प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कि उस वो प्रॉपरली वो जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए कौन सा बस का जरूरत पड़ेगा हमें? Control bus का, correct. So in a way we want all three different buses when we are talking about our instruction execution, fine. तो अब हम बात करते हैं कि read write operation करना है हमें।
रीड राइट के लिए जो हमारा ये कंट्रोल यूनिट है वो कौन सी कैसे तरीके से रीड राइट करेगा, जीरोस एंड वंस की मदद से रीड राइट करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या समझता है, बाइनरी समझता है, और Binary. बाइनरी में जीरोस एंड वंस ही है सिर्फ, ठीक है। तो वो यहाँ पे बाइनरी समझ लेगा जीरोस एंड वंस को। तो इन अ वे हम जब भी कुछ यहाँ पे राइट करने का ट्राई करेंगे तो वो इंडिकेट क्या करेगा मेमोरी को, जीरोस एंड वन। और एट द सेम टाइम यहाँ पे ये कैसे कर दिया है सिस्टम ने, अपने हिसाब से बाइफरकेट किया हुआ है कि रीड एंड राइट ऑपरेशन करना है तो वो वायर के थ्रू मैसेज जाएगा कि हम रीड करना चाहते हैं तो क्या वहां पे हमारा होना चाहिए। अगर उसे बाइनरी वन मिलता है, वन इंडिकेट्स दैट मेमोरी इज टू बी रीड, हम रीड करना चाहते हैं मतलब कि नंबर वन। जीरो इंडिकेट्स दैट द मेमोरी इज टू बी रिटर्न, हम लिखना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, तो वो हो गया हमारा जीरो। आर वी गेटिंग दिस थिंग? जीरो मतलब क्या हुआ हमारा, Right. राइट, करेक्ट, गुड। एंड वन मतलब वी वांट टू रीड फ्रॉम द मेमोरी, Zero. करेक्ट, गुड। सो दैट इज देयर। दूसरा रहेगा यहाँ पे कि जो भी हमारे ये मेजर टाइप्स हैं बस साइकिल्स के अंदर, यहाँ पे जो बस के साइकिल्स बनेंगे उसमें मेजर जितने टाइप्स हैं उसमें 4 मेजर टाइप्स हैं हमारे पास। द वेरी फर्स्ट वन इज आईओ रीड साइकिल। सेकेंड, आईओ मतलब क्या हो गया हमारा इनपुट आउटपुट, ठीक है, Input out. हाँ करेक्ट, आईओ रीड साइकिल। देन अगर आईओ रीड करेगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हम राइट भी करेंगे, करेक्ट, सो आईओ राइट साइकिल। देन मेमोरी रीड साइकिल, और अगर मेमोरी में से हम रीड करेंगे तो मेमोरी में राइट भी करेंगे, तो आ गया हमारा मेमोरी राइट साइकिल। सो इन अ वे यहाँ पे 4 मेजर हमारे बस के साइकिल्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल, input output memory read cycle and memory write cycle, fine. So these 4 different types of cycles we are having. अब अगर बात करते हैं इनपुट आउटपुट रीड साइकिल का, तो उसमें होगा क्या, सीपीयू विल रीड डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। सीपीयू क्या करेगा, डेटा रीड करेगा, कहाँ से, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइसेस कौन से हो गए हमारे, कीबोर्ड है, माउस है, वहां हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा को रीड करने का काम करेगा। उसमें पूरा साइकिल घूमेगा। क्यों पूरा साइकिल घूमेगा, हम जानते हैं पूरी साइकिल में क्या क्या होगा। वो इंस्ट्रक्शन फैच करेगा कि उसे पता चलेगा कि रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन आया है। फिर हमने बात किया था कि फ्लैग, उसका रीड फ्लैग अप होगा या फिर राइट फ्लैग अप होगा, दिस दैट, वो पूरा जो हमारा है वो डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ब्ला 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 इन अ वे। ये पूरा हमारा साइकिल जो है वो घूमेगा एवरी टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। तो सीपीयू विल राइट इनटू एन आउटपुट डिवाइस, मतलब कि हमारा जो ये डिस्प्ले स्क्रीन है उसके ऊपर हमें कंटेंट कैसे दिखता है, हमारे सीपीयू की मदद से। सीपीयू वहां पे क्या करेगा, राइट ऑपरेशन जो है, आउटपुट राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, एंड देन विल बी एबल टू गेट आर राइट ऑपरेशंस ऑनटू आर आउटपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट है मेमोरी रीड साइकिल। तो क्या होगा, सीपीयू विल रीड डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन से हमें कोई डेटा रीड करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये मेमोरी रीड साइकिल। देन मेमोरी राइट साइकिल में क्या होगा, सीपीयू विल राइट ऑन इनटू द मेमोरी लोकेशन। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Yes, ma'am. Okay, fine. Abhi, there are basic steps of fetching the execute cycle, fetch execute cycle. तो उसके steps हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The very first step में क्या रहेगा, CPU will examine the program counter register PC. अभी PC program counter register जो है वो क्या कैरी करता है, Instruction. हाँ, so this will gives the address of the instruction to be brought in from memory in the CPU has a memory address register. memory address register MAR के अंदर जो पर्टिकुलर हमारा एड्रेस है वहां से उठाएगा एड्रेस, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या मतलब IR, वहां से उठाएगा इंस्ट्रक्शन। ताकि अब हमारे पास क्या क्या हो गया कि इंस्ट्रक्शन क्या है कि ऐड करना है, और हमने MAR से क्या उठाया, हमारा डेटा उठाया, मतलब एड्रेस उठाया, तो वो एड्रेस के ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। अगर मुझे N1 प्लस N2 करना था तो इंस्ट्रक्शन पता चल गई हमें प्रोग्राम IR मतलब IR से कि एडिशन करना है परफॉर्म, ठीक है। अब मुझे किसका जरूरत है, डेटा का, कि N1 एंड N2, N1 में था 10, N2 में था 20, तो अब मेरा हो जाएगा इजीली 30। आर वी गेटिंग? Yes, ma'am. Okay. Now the memory address register is the one which holds the address to be placed onto the address bus.
सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है हमारा MAR, वो क्या करेगा, इट विल होल्ड द एड्रेस टू बी प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस। एड्रेस बस के ऊपर वो अपना एड्रेस डाल देगा, मतलब कि नेक्स्ट ये जो भी पर्टिकुलर टास्क हो रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के साथ में, वो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वगैरह वो डाल देगा कौन सी बस के ऊपर, यहाँ पे ये एड्रेस बस के ऊपर। तो जिसकी मदद से कहाँ पे जाना है, मतलब कि वीडियो के पास जाना है, कीबोर्ड के पास जाना है, डिस्क के पास जाना है, वो किससे पता चलेगा, एड्रेस की मदद से। या फिर कोई डेटा के ऊपर, मतलब कि रैम में या रोम में कहाँ पे जाना है, तो रैम में जाना है, रोम में जाना है, वो कैसे पता चलेगा, एड्रेस की मदद से वो डिसाइड कर लेगा और वहां तक पहुंच जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, वो एड्रेस निकाला और वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, द प्रोसेसर देन सेट्स द रीड राइट लाइन टू 1 टू इंडिकेट दैट द मेमोरी वैल्यू इज टू बी रीड इनटू द सीपीयू। अभी हमने बात किया था 0 एंड 1 में बाइनरी में होगा। 1 डज मींस व्हाट, indicates that memory is to be read, we want to read from the memory, and 0 does means what, we want to write into the memory, correct। so वो यहाँ पे उसका फ्लैग ऑन ऑफ करेगा, मतलब कि उसे रीड करना है या राइट करना है। 1 इंडिकेट कर रहा होगा, मतलब कि वहां से उसे क्या करना है कि रीड करना है। 0 मतलब कि उसे वहां पे क्या करना है, राइट करना है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो एड्रेस बस है वो इनेबल हो जाएगा कि रीड करना है या राइट करना है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा एड्रेस बस है वो उसे गाइड करेगा कि रीड करना है उसे तो कहाँ पे जाना है, कौन सा एड्रेस पे जाना है, राइट करना है तो कौन सा एड्रेस पे जाना है। क्यों, क्योंकि रीड करना है तो हमारे पास ऑलरेडी एड्रेस अलोकेटेड है ही, उस एड्रेस से हमें सीधा रीड करना है। राइट करने की बारी आएगी तो क्या होगा, हमें नया एड्रेस चाहिए होगा जहाँ पे फ्री स्पेस है, टास्क रहेगा होगा इस पर्टिकुलर स्टेज नंबर 2 पे। अब थर्ड स्टेप पे क्या होगा, हाँ जी बोलिए, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ। 0 मीन्स रीड या राइट? See, 0 means read. 0 means you are going to read from the memory. No, sorry, 0 means write. 1 means you are going to read from the memory, and 0 means you are going to write to the memory. Fine. 1 means reading, 0 means writing. Clear है ना? यस मैम। ओके। अब दूसरा मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपको कि रीड एंड राइट हम करेंगे, तब रीड करना है तो क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी एड्रेस अवेलेबल है ही, क्योंकि ये पर्टिकुलर लोकेशन से मुझे सीधा पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम राइट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को हमारे लिए फ्री हैंडल होने वाला है, ठीक है। Okay. Yes, Now in step number 3, what will be done? The memory fetch the byte from the specified address and places it onto the data bus. अभी क्या होगा, आपको रीड करना है या राइट करना है, जो भी करना है, क्या सीधा मेमोरी से होने वाला है, नहीं। मेमोरी किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे बस के साथ। कौन से बस के साथ में, डेटा बस के साथ में। तो हमें जो रीड करना है ना, वो मेमोरी के अंदर से जाएगा डेटा बस के अंदर। जो भी हम रीड करना चाहते हैं वो चला जाएगा डेटा बस में, और जो डेटा बस हमारा है वो दे देगा वो कंटेंट हमारे वीडियो को, मतलब कि विजुअल डिवाइस को दे देगा, विजुअलाइज हो जाएगा क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। राइट करना है हमें तो कीबोर्ड ने जो कंटेंट दिया है उसे वो डाल देगा यहाँ पे मेमोरी में। आर वी गेटिंग? Yes, ma'am. yes, ma'am. On step number 4, that is on the next step, what we are going to do, the memory then sets the data bus enable line to indicate to the processor that the data bus contains a valid byte। मतलब कि डेटा बस जो है वो भी अगेन डेटा बस के ऊपर से भी कैसे जाएगा, 0 एंड 1 वहां पे भी आएगा हमारा साथ में, कि 0 है मतलब डेटा को क्या होना है, वहां पे 0 है मतलब क्या होगा, डेटा को राइट होना है, ठीक है, करेक्ट ना। और 1 है मतलब कि रीड करना है, तो वो यहाँ पे ये डेटा बस भी हमारा मेंशन करेगा कि डेटा में डेटा है सही उसके पास में, लेकिन रीड डेटा बस को आगे क्या करना है, रीड करना है उस डेटा का या फिर राइट करना है उस डेटा को, वो पता चलेगा हमें 0 से 1 की हेल्प से, कि डेटा बस को इनेबल किया जाएगा उसकी मदद से। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है उसे +1 कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव हो पाए। हाँ, तो प्रोग्राम काउंटर जो हमारा है उसे हम यहाँ पे कर देंगे 1 से इंक्रीमेंट। तो वो तो हम जानते हैं क्यों हम +1 करते हैं प्रोग्राम काउंटर को।
करेक्ट। तो अब हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन का सारा काम हो गया है, हमने फेच कर दिया है उस इंस्ट्रक्शन को, हमने उसे एग्जीक्यूट कर दिया है, सारा चीजें परफॉर्म हो चुका है, होना चाहिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम मूव होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम काउंटर जो है उसे +1 कर देंगे। आर वी क्लियर विद दिस मच? ओके फाइन। Yes, ma'am. Okay. Now next is about our interrupts. So basically we are done with this. हमारा जो ये वाला portion था instruction execution that we are done with. Next है हमारा जो कि है interrupts है. Okay, what do you mean by interrupts? हमारे लिए interrupt क्या है? कंप्यूटर का भूल जाओ, हम कभी आपने भी बोलते हैं हम लोग कि interrupt, you are interrupting me और I got an interrupt. तो वो सारी चीजें क्या है? What is interrupt? What do you mean by interrupt? Yes. Okay. आप सपोज कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, इन बिटवीन आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोलने के लिए, बात करने के लिए आपको बोला कि नॉट डिस्टर्बिंग, बट आपको इन अ वे आपने होल्ड किया वहां पे, तो आप जो काम कर रहे थे आपने क्या किया, उसे लाइक यू केप्ट इट एज इट इज और वहां पे हाँ सॉर्ट ऑफ ब्रेक, करेक्ट, तो वहां पे आपने ब्रेक ले लिया और वो काम छोड़ के फॉर अ मोमेंट आपको जो टास्क दिया गया था दूसरा कुछ बोल रहे थे, तो वो आप उसे सुन रहे थे, उसका काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, ठीक है, अगेन यू आर गोइंग टू गेट बैक टू योर वर्क, जब भी वो जो काम आपको अलोकेट किया गया था आपने कर लिया, तो आप वापस से अपना जो काम कर रहे थे उसमें रिटर्न हो जाओगे, ठीक है, तो दैट्स व्हाट इंटरप्ट्स एग्जैक्टली ओवर हियर एज वेल इन आवर सिस्टम। फाइन। इंटरप्ट जो है वो इट्स नथिंग बट एन इवेंट ओनली, वो एक तो इवेंट है which occurs while the processor is executing an instruction। अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं कि मतलब 5000 इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर में कहीं पे इन बिटवीन अगर ऐसा कुछ आता है, मतलब कि इन लाइक क्या है हमारा, ये क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं पे एक ऐसी इंस्ट्रक्शन आ गई कि जो होल्ड करने के लिए बोल रही है, या फिर जो सिस्टम का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसे टर्मिनेट तो नहीं पर उसे ब्रेक करने का काम करती है, तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे यहाँ पे इंटरप्ट्स। फाइन, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट। ये बहुत से इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही थी, इन बिटवीन कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन उसी के अंदर से हमारा लाइक एग्जीक्यूट हुआ जिसने सिस्टम को ब्रेक दे दिया है, ठीक है, तो जिसने सिस्टम को इंटरप्ट दे दिया है। तो ओके, आर वी क्लियर विद इंटरप्ट क्या है बेसिकली? यस मैम। ओके फाइन। अभी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? यस। मैम हाँ हमने पीपीटी बना दी, उसको हाँ हम रीड कर रहे हैं, तब हमें पता चला कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तब हम राइट का जो परफॉर्म करते हैं उसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो जो आपने फॉर अ बिल्कुल इन बिटवीन फॉर अ मोमेंट का जो आपने वहां पे जो इंटरप्ट लिया है, मतलब कि आपने जो ब्रेक लिया है, दैट इज व्हाट इज योर इंटरप्ट, वेरी गुड। तो वहां पे आपने जो ये हुआ ना हमारा, ये बेसिकली हुआ है हमारे टाइमर क्लॉक इंटरप्शन हुआ है, राइट, तो विच इज देयर। सो ऐसे टाइप के इंटरप्ट्स जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर जनरेट होते रहते हैं, हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस की वजह से भी जनरेट होते हैं सिस्टम के अंदर, मतलब कि सॉफ्टवेयर की बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल वो जनरेट हो सकते हैं। तो दीज आर नथिंग बट द सॉर्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। तो बेसिकली कितने टाइप्स हैं इंटरप्ट्स के? बेसिक 2 टाइप्स हैं हमारे इंटरप्ट्स के। फर्स्ट इज इंटरनल इंटरप्ट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। जब हम बात करते हैं इंटरनल इंटरप्ट की, तो वो किसकी वजह से कॉज होगा? हमारे सिस्टम के अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके सॉरी हाँ इन बिटवीन वहां पे सपोज एक आईएनटी इंस्ट्रक्शन है सपोज, ठीक है, आईएनटी इंस्ट्रक्शन है, वो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें इंटरप्ट कॉज करती है, आईएनटी स्टैंड्स फॉर आर इंटरप्ट, ठीक है, तो जो हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रन हो रहे थे, एग्जीक्यूट हो रहे थे, इन बिटवीन जैसे ही आईएनटी इंस्ट्रक्शन आएगा, मतलब क्या हो गया, वहां पे इंटरप्ट कर दो, ठीक है, आईएनटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटरप्ट, वो हो गया हमारा इंटरनल इंटरप्ट। अगर हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट का, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट के अंदर क्या आएगा बेसिकली कि हमारे जो
हार्डवेयर की वजह से जो इंटरप्ट्स आते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, और सॉफ्टवेयर की वजह से शायद इंटरनल इंटरप्ट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे इंटरनल इंटरप्ट्स। अभी जो हार्डवेयर की वजह से होंगे जो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं वो बेसिकली किसके कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनएमआई एंड दूसरा होता है आईएनटीआर। एनएमआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और दूसरा जो हमारा आईएनटीआर है वो क्या हो गया हमारा? मास्केबल इंटरप्ट हो गया। ठीक है, अभी नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड मास्केबल इंटरप्ट, इन दोनों के डिफरेंस में जाने से पहले पहले मास्क क्या होता है, व्हाट इज मास्क? अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो एक्चुअल में पर्सन कौन है क्या आपको पता चल सकता है? नहीं। मास्क हम निकाल देंगे, यस वी विल गेट टू नो। तो यहाँ पे कैसे रहेगा? मास्केबल इंटरप्ट का मतलब क्या है? और अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो कैन वी पुट मेकअप ऑन टू योर मास्क? नो। तो वो हम नहीं वहां पे करने वाले हैं, मास्क के ऊपर मेकअप, नो। सो यहाँ पे मास्केबल इंटरप्ट जो होते हैं वो बेसिकली कैसे रहेंगे यहाँ पे कि जब भी कैसे रहेगा कि आई मीन हमारा जो सिस्टम है वो उसे लाइक इग्नोर कर सकता है इन मास्केबल, मतलब कि वी कैन अवॉइड दैट थिंग। मिनट आप चाहते हो कि आपका जो भी काम चल रहा है उसमें सपोज वो इंटरप्ट आया है इन बिटवीन, इफ यू वांट कि आप जो काम कर रहे हो वो फिनिश हो जाए उसके बाद में आप उस इंटरप्ट को मतलब कि हैंडल करना चाहते हो, ठीक है? तो वो कौन सा हो गया हमारा? मास्केबल इंटरप्ट, कि जहाँ पे मास्क है दैट इज योर मास्केबल इंटरप्ट। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है उसमें कैसे रहेगा कि कंपल्सरीली वो इंटरप्ट हमारा रन होगा ही होगा, हम कुछ भी कर ले वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंटरप्ट हो ही जाएगा, हम वहां पे उसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। वी have to accept that interrupt. Are we clear with this? Maskable, non-maskable, internal, external? Okay, fine, good. Next is about different जो हमने अभी टाइप्स देखे इंटरप्ट के, उसमें और हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट्स होते हैं, नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट्स होते हैं। When we are talking about instruction related interrupts कैसे कैसे हो सकते हैं, तो illegal instruction मतलब कि गलत है, ठीक है? तो अगर हमने ऐसा बोला है कि एट द सेम टाइम हमारा जो डेटा बस है उसमें से डेटा रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है, तो क्या एट द सेम टाइम हम ये दोनों चीजें कर पाएंगे? नहीं। एट अ मोमेंट या तो आप रीड कर पाओगे या तो राइट कर पाओगे। ऐसी जो इलीगल इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को की वजह से इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट्स अकर होते हैं। दूसरा है हमारा प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस, कि जो प्रिविलेज्ड है हमारी इंस्ट्रक्शंस उसकी वजह से हो सकता है। देन बस एरर्स, मतलब कि हमारे बसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है तो इंटरप्ट हो सकता है, क्योंकि बस में अगर प्रॉब्लम आया मतलब डेटा ही पास नहीं हो पाएगा। डेटा पास होगा तब जाके हमारे हाथ में तो कुछ आएगा ना, डेटा पास ही नहीं हुआ है तो हम किसके ऊपर आगे काम करेंगे, ठीक है? तो इसलिए बस का इंटरप्ट है, बस के अंदर कोई एरर है तो भी हमारा सिस्टम इंटरप्ट जोन में चला जाएगा। डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो आप सी में पढ़ चुके हो कि जब भी हम डिवाइड बाय जीरो करने जाते हैं तो वहां पे वो स्टॉप हो जाता है हमारा सिस्टम, ठीक है? तो वो भी अगेन हो गया, क्या हो गया हमारा? इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट। देन विजुअल मेमोरी पेज फॉल्ट, मतलब कि पेज फॉल्ट आप ना आगे जाके पढ़ोगे, जब आप ओएस वगैरह पढ़ोगे ना उस समय पे आप पेज फॉल्ट का थोड़ा सा पढ़ोगे, देन यू विल गेट सम आइडिया अबाउट इट। और विजुअल मेमोरी पेज फॉल्ट मतलब कि आप ऐसा कंसीडर कर लो कि हमारे जो पेजेस है उसके इन बिटवीन हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, कि हमारा सपोज 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 2 पेजेस का रीड हो गया है, इन बिटवीन जो थर्ड पेज है तो वहां से हमारा कंटेंट हम फैच नहीं कर पा रहे हैं रीडिंग के लिए, ठीक है? देन है सिस्टम कॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम कॉल आया है ओएस का तो उसकी वजह से भी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट यहाँ पे अकर हो सकते हैं। देन नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट्स वो कौन से होंगे? एक तो हार्डवेयर डिवाइस के अंदर कोई इश्यू हुआ है तो होंगे। देन टाइमर एक्सपायरेशन हो गया है कि हमने टाइमर कोई सेट किया गया होगा तो उसका अगर एक्सपायर हो गया है तो वो इंटरप्ट अकर हो सकता है। हमने रीसेट दिया है, कई बार हम रीसेट देते हैं हमारे सिस्टम को, तो उस केस में हमारा नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट हो सकता है। देन पावर फेलियर, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो ही सपोज चला गया तो क्या उसके अंदर हमारे कोई इंस्ट्रक्शन का कोई इश्यू है? नहीं, वो नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, पर इंटरप्ट तो हुआ, हमारा सिस्टम तो बंद हो गया, यस। देन दूसरा है ऑन चिप डिबगिंग, तो उस केस में भी इंटरप्ट अकर हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स वी हैव। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। ओके फाइन। सो आज जो भी हमने पढ़ा है क्या सभी उसके साथ में कंफर्टेबल हैं हम?
ओके फाइन. Yes, ma'am. So for a day we are keeping till this. हम यहाँ तक का रख रहे हैं आज. ठीक है. I guess आप लोगों ने जो भी हमने डिस्कस किया है वो सारा कुछ समझ आया है. ठीक है. So I'm keeping till this. Okay fine. So bye and have a lovely day. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye.